everyone. Today we are starting analysis of Iliad written by Greek poet Homer. Iliad is an epic poem. An epic poem is defined as a lengthy narrative poem. So Iliad is a very long poem, and it is a narrative of a 10-year long war fought between the Greeks and the Trojans. So let me give you a little background of why this war was fought, and then we'll focus on the book one. Iliad is basically a war which was fought between the two armies. The one army was the Greek army. So there were many regions in the Greece, and many leaders, many Greek warriors participated in this war. The few major leaders of this Greek war were Agamemnon, Menelaus, Achilles, Ajax, Odysseus, Patroclus, and more. And then the Trojan people. Troy is a country, and modern day Turkey is the place where in ancient times this place was called as Troy. So जो ट्रॉय के जो लोग थे, ट्रॉय के जो वॉरियर्स थे, जिनमें the king of Troy was Priam, his son Paris, the brother, and then there were many other warriors as well. And why this war was being fought? Greek army came to fight with Trojans in order to take Helen back. Helen is called as one of the most beautiful women in this world. Helen was married to Menelaus, and they were living a very happy life. But as we have studied in the previous hymns as well, that Greek gods have been very nasty, and they are very playful as they tease and play with human desires and human lives. So what happened that once Zeus, he asked Paris is prince of Troy. Zeus asked Paris that who does he think is the most ब्यूटीफुल गॉडेस. वो पेरिस से एक सवाल करता है कि सबसे खूबसूरत गॉडेस कौन है, तो वो उसे ऑप्शन देता है एथीना, आर्टेमिस और एफ्रोडाइटी. और पेरिस जो है चूज़ करता है एफ्रोडाइटी को. ही चूजेस एफ्रोडाइटी एज द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस. एफ्रोडाइटी बीइंग हैप्पी एंड बीइंग जॉयड विद पेरिस, she allows him to ask whatever he wants. उसे कहती है जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगी. And we all know how nasty, how playful Aphrodite is. She is the lover of smiles. She plays with the human desires. She is the goddess of intimacy and pleasure and love. So she can do anything. And then Paris asks her that I want the company of the most beautiful world in this world. मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का साथ चाहिए. और दुनिया की खूबसूरत औरत कौन है? हेलेन. So Aphrodite says, because you have asked me about Helen, so I will give you Helen. Helen that time she was married with Menelaus. वो एक ग्रीक किंग Menelaus की ऑलरेडी उससे शादी हो चुकी थी. लेकिन पेरिस क्योंकि एफ्रोडाइटी जो है शी पुट्स स्वीट डिज़ायर्स इन पीपल, उनके दिलों में जो है वो इस तरह की ख्वाहिशें पैदा कर देती है, लस्टफुल डिज़ायर्स एंड विशेस, जिसके सामने दे कैन नॉट डू एनीथिंग एंड दे सबमिट टू हर प्लान्स. सो हेलेन, Paris goes to Greece, he abducts Helen elopes with Paris, और वो जो है वो पेरिस जो है हेलेन को लेके ट्रॉय आ जाता है अपने मुल्क. ठीक है, तो ट्रॉय एक अलग मुल्क है और ग्रीस जो है वो एक अलग मुल्क है. यहाँ तक आई होप आपको ये बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर होगी. अब क्योंकि हेलेन इस दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी, तो उसके लिए जब व्हेन शी वाज अबाउट टू गेट मैरिड, बहुत सारे सूटर्स, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन हेलेन ने मेनोलस को चूज़ किया था एज हर हस्बैंड. तो जो बहुत सारे और जो जितने भी लोग हेलेन से शादी करने के लिए आए थे, दे मेड एन एसोसिएशन दैट व्हेन एवर हेलेन विल बी इन ट्रबल वी विल हेल्प हर. तो अब जब हेलेन को जो है अब्डक्ट कर लिया है पेरिस ने और वो ट्रॉय ले गया है, तो हेलेन का जो हस्बैंड है मेनोलस, वो इन तमाम किंग्स को बुलाता है, तमाम ग्रीक लीडर्स को बुलाता है टू कम एंड हेल्प हिम. सो नाउ जो ग्रीक आर्मी है वो 100,000 शिप्स, 1000 से ऊपर की अपनी कश्तियाँ लेके और अपने जो है फ़ौजी सोल्जर्स और सब कुछ लेके, और काफ़ी सारे डिफरेंट ग्रीक लीडर्स इंक्लूडिंग मेनोलस, एगमेमनॉन जो मेनोलस का भाई है, हेलेन का ब्रदर इन लॉ है, अकाइलीस अ ग्रेट ग्रीक वॉरियर, एजैक्स, ओडिसस और बहुत सारे लोग जो हैं वो सब मिल के अपनी शिप्स,
अपने हथियार, अपने सोल्जर्स को लेके, जानवरों को लेके दे आर आउटसाइड ट्रॉय, वो ट्रॉय के बाहर आके उन्होंने अपना जो है डेरा जमा लिया है। सो एक तरफ ग्रीक्स हैं, ठीक है, ग्रीक आर्मी, और एक तरफ ट्रोजन्स हैं, ट्रोजन्स अपने मुल्क के अंदर हैं और ग्रीक्स बाहर हैं, ठीक है। और ये जो जंग है इट इज़ वेरी लॉन्ग वॉर, इट रिमेन्स देयर फॉर 10 years। ये 10 साल लंबी जो है ये जंग लड़ी जाती है टू ब्रिंग हेलन बैक, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों की फ्रॉम द ग्रीक साइड, फ्रॉम द ट्रोजन साइड, बट एंड में जो है डिफीट, जो जीत होती है वो ट्रोजन्स की होती है। दे सक्सीड इन ब्रिंगिंग हेलन बैक, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि जो इलियड है इट कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स, बट आपके सिलेबस में बुक 1 है, सो विल बी फोकसिंग ऑन बुक 1। सो दिस इज़ द एंटायर background of Iliad, why this war was being fought between the Greeks and the Trojans to bring back Helen, and then who were all the Greek kings. Now what happens, the focus of book 1 is not on the war, वो उसका focus जो है ना ग्रीक किंग्स पे और ग्रीक्स और ट्रोजन्स की जंग से ज़्यादा द फोकस ऑफ बुक 1 इज़ ऑन द इनर कॉन्फ्लिक्ट विच अराइजेज बिटवीन द ग्रीक लीडर्स के दरमियान जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, एक डायलम, एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन जो है वो खड़ी हो गई है, एंड इट इज़ कॉजिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रीक लीडर्स और ग्रीक सोल्जर्स जो हैं वो मर रहे हैं, दे आर लूजिंग। सो एक उनके दरमियान देयर इज़ एन इनर कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ बीइंग एड्रेस्ड इन द बुक 1। And what is that inner conflict? We all have studied in history books that whenever war were fought, जब भी जंगें लड़ी जाती थी तो जो विनिंग टीम होती थी, विनिंग साइड होती थी, दे यूज टू टेक ऑल द मनी, प्रॉपर्टी, जो कुछ लेफ़्ट ओवर होता था जिसको माल गनीमत बोला जाता है, वो अपने साथ लेके जाते थे। तो उसमें जो है बच्चे और नौकर और औरतें भी शामिल होती थी। तो ये जो ग्रीक्स हैं इन्होंने एक वॉर लड़ी, तो उसमें जो है देवर वो एक उन्हें फतह हुई। सो दे माल गनीमत में दे हैड दिस विमेन एंड ऑल। उसमें जो है एक ख़ास विमेन थी, उसका नाम था क्राइसिस जो है शी इज़ द डॉटर ऑफ अ प्रीस्ट। मैं ये आपको जो है जूम करके बताती हूँ। क्राइसिस का नाम CHRYSEIS जो है, ये क्राइसिस लड़की है। उसके ऊपर वाली लाइन में क्राइसिस जो है उसका फादर है। क्राइसिस कौन है? ही इज़ द प्रीस्ट ऑफ अपोलो, और वो क्राइसिस जो है शी इज़ वर्शिपर ऑफ अपोलो। ये जो है शी इज़ बिकम्स अ वॉर प्राइज़, जंग के नतीजे में जो है वो जीती जाती है। तो एगमेम्नॉन जो एक ग्रीक किंग है, बहुत फेमस, बहुत ब्रेव, उसका वॉर प्राइज़ होती है। शी बिकम्स हिज पर्सनल कंपेनियन ऑन द वॉर, जिसको हम उर्दू में बांदी का वर्ड भी यूज़ करते हैं। ये उस क्राइसिस जो है वो एगमेम्नॉन की बांदी बच जाती है, वॉर प्राइज़ बन जाती है। बट वन थिंग विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस हिम्स एज वेल, दैट द गॉड्स हैव बीन वेरी नास्टी विद ह्यूमन बींग्स, दे मेडल विद देयर डे टू डे अफेयर्स। वो उनकी ज़िंदगी में जो भी कारोबार चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, उनमें वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। इफ़ दे आर हैप्पी विद ह्यूमन्स, उनको दे ब्लेस देम, इफ़ दे आर एंग्री विद देम दे कॉज देयर रैथ ऑन देम। सो दे आर ऑलवेज प्लेइंग विद ह्यूमन बींग्स। नाउ दिस गर्ल क्राइसिस इज़ विद एगमेम्नॉन। उसका फादर जो है वो अपोलो का प्रीस्ट है, ठीक है। सो दिस मैन क्राइसिस ही कम्स विद लॉट्स ऑफ रैंसम, बहुत सारी प्रॉपर्टी, शिप्स, काफ़ी सारे तोहफे तहाइफ लेके वो जब ये बुक 1 स्टार्ट होती है उसमें जो है he brings all that gold and gifts and all for Agamemnon, उसे देने के लिए कि ये ransom ले लो और give my daughter back, मुझे मेरी बेटी दे दो, and we'll go. But Agamemnon being a very hot-headed person, ठीक है, he disagrees, he just denies and he refuses कि मैं तुमसे कुछ लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी वापस रिटर्न करने वाला नहीं हूँ। The words of Agamemnon are very important because Agamemnon is a very important character, very important Greek leader, and we can see that he is very hot-headed, very vile, very vicious, ठीक है। तो वो जो है एड्रेस भी जो है ये मैं आपको जूम करूँ तो ये displeased Agamemnon dismissed Chrysis roughly. Old man, don't let me catch you by your hollow ships, sneaking back here today or later on. So this is how he वो अपोलो का प्रीस्ट आया अपनी बेटी को लेने के लिए,
लेकिन एगमेम्नॉन का जो एटीट्यूड है वो कम होने को ही नाम नहीं आ रहा। एंड ही एड्रेसेस हिम एज एन ओल्ड मैन एंड सेज अगर तो मुझे वापस कभी यहाँ नज़र आए तो मैं तुम्हारा ये कर दूँगा वो कर दूँगा। सो ही रिफ्यूज़ेस टू गिव बैक द डॉटर। अब क्राइसिस वो जो प्रीस्ट है वो वापस आता है क्राइंग, ही प्रेज टू अपोलो कि इन लोगों पर कहर बसा दो। एंड यू नो ग्रीक गॉड्स आर रेडी टू प्ले विद ह्यूमन बींग्स। तो अपोलो जो है ही अपोलो इज़ गॉड ऑफ शूटिंग, सो ही सेंड्स द बर्निंग एरोज फ्रॉम द स्काई। तो वो कुछ आग से जलते हुए तीर जो है 9 दिन और रात के लिए आसमान से बरसना शुरू हो जाते हैं ग्रीक आर्मी पे। अभी जंग शुरू नहीं है, ट्रोजन्स के साथ आसमान से बारिश आग की सूरत में तीर बरसने शुरू हो गए हैं, लोग खैमे जानवर तबाह हो रहे हैं। एंड द सिचुएशन इज़ वेरी बैड एंड दे ऑल आर वेरी वर्ried कि व्हाट इज़ हैपनिंग। सो दिस ग्रीक लीडर इकाइलीस जो है वो सोचता है, उसको हीरा जो है गॉडेस हीरा इज़ वाइफ ऑफ जूस सजेशन देती है दैट ही शुड कॉल फॉर अ कॉन्फ्रेंस, एक तमाम मीटिंग बुलाए तमाम ग्रीक लीडर्स की और उसमें जो है प्रोबेबल सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से तीर बरसते रहे आग वाले तो उनके तमाम लोग जो है मर जाएंगे। सो काइलीज ही कॉल्स फॉर अ मीटिंग और तमाम जितने भी ग्रीक लीडर्स हैं दे आर कलेक्टेड टुगेदर, दे गैदर्ड। लाइन 60 में देखें तो द मैन गैदर्ड, द मीटिंग केम टू ऑर्डर। और फिर काइली सेज दैट वी आर हेयर बिकॉज वी आर गोइंग टू have this discussion that what is happening with this, why Apollo is angry with us, we'll find out the reason, हम reason तलाश करेंगे कि why he is angry with us and then we are going to फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। हम अपोलो को राज़ी करने की कोशिश करेंगे चाहे जो कुर्बानी हमें देने पड़े, ताकि हम लोग जो हैं अपने लोगों को बचा सकें और जिस काम के लिए हम आए हैं वॉर के लिए उस पर फोकस कर सकें। देन ही आस्क्ड दिस मैन डिनानास, जो कि एक प्रीस्ट है, जो कि हाल जो है जो किस्मत का हाल बताता है, उसे बताता है कि बताओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। डिनानास जो है वो बहुत डरा हुआ है और वो सेज कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा अनटिल यू सेव माई लाइफ, तुम कहो कि तुम मेरी जान की हिफाजत करोगे। सो काइली सेज दैट आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। एंड यू ये लाइन है सॉरी कालचास, आई एम सॉरी आई वाज यूजिंग द नेम दिनांस, इट्स एक्चुअली कालचास जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट को जो है इंटरप्रेट कर सकता है। ये लाइन 80s में देखें तो कालचास जो है स्पीकिंग एंड इज़ वेरी अफ्रेड। वो बेसिकली किससे डरा हुआ है? वो एगमेम्नॉन से डरा हुआ है, क्योंकि एगमेम्नॉन इज़ अ वेरी एग्रेसिव हाइपर किंग वॉरियर, और वो जो है किसी को भी नहीं देखता, जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो कालचास नहीं चाहता कि वो नाम ले एगमेम्नॉन का, क्योंकि सबको पता है कि एगमेम्नॉन और उसके गुस्से की वजह से, क्यों जिस तरह से उसने उस प्रीस्ट को जो है रिफ्यूज़ किया था उसकी बेटी वापस करने से, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। बट दे आर अफ्रेड टू टेक हिज नेम। एनी हाउ काइलीस कालचास को कहता है कि ट्रस्ट मी आई विल प्रोटेक्ट यू, तुम मुझे बताओ। तो कालचास जो है ही सेज के अगर एगमेम्नॉन माफ़ी मांग ले अपोलो से और उसकी जो प्रीस्ट की बेटी है क्राइसिस वो रिटर्न कर दे, देन अपोलो विल बी फाइन विद अस एंड देन दिस बर्निंग एरोज फ्रॉम द स्काई दे विल स्टॉप एंड देन विल बी एबल टू फोकस ऑन द वॉर। ये बात सुनते ही जो है एगमेम्नॉन जो है उसको तो आग लग जाती है, ही गेट्स वेरी वेरी एंग्री। ये लाइन 110 के बाद देखें तो incensed, his spirit filled with immense black rage, eyes blazing fire, he rounded first on Calchas. This is Agamemnon. ये एगमेम्नॉन की डिस्क्रिप्शन है, दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी। अगर इस पिक में से क्वेश्चन आ जाता है राइट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ एगमेम्नॉन, दीज लाइन्स विल बी वेरी हेल्पफुल। इंसेंस्ड है, आग की तरह भड़क रहा है, इमेंस ब्लैक रेज, इतना गुस्सा है कि वो बिल्कुल काला पड़ रहा है, आइज ब्लेज, आंखों से शोले लपक रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ दे आर डिस्क्राइबिंग एगमेम्नॉन। एंड देन ही स्पीक्स टू कालचास एंड ही सेज तुम बहुत मनहूस हो, कभी तुमने मेरे लिए अच्छी खबर नहीं दी। एंड देन द क्वेश्चन गोज ऑन, ही सेज कि मैं जो हूँ क्राइसिस जो है रिटर्न नहीं करना चाहता, मुझे क्राइसिस की कंपनी बहुत पसंद है, मोर देन माई वाइफ। एगमेम्नॉन्स वाइफ इज़ क्लिटेमनेस्ट्रा। ही सेज कि मुझे अपनी वाइफ से ज़्यादा जो है क्राइसिस की कंपनी पसंद है, लेकिन मुझे अपने लोगों के लिए और इस वॉर को लड़ने जीतने के लिए ज़ाहिरी बात है तुम सबका साथ चाहिए, तो मैं ज़रूर जो है तुम लोगों की बात मानूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। तो अकाइली सेज के जो है नोबल सन ऑफ एट्रियस 130 के बाद देखिए तो मोस्ट इनक्विजिटिव ऑफ मैन, हाउ कैन ब्रेव एकियंस गिव यू अ प्राइज नाउ, कि तुम्हारी क्या शर्त है, हम तुम्हें क्या तोहफ़ा दें। अब तुम हम पे शर्त रख रहे हो कि तुम उस लड़की को वापस करोगे अगर हम तुम्हें कोई तोहफ़ा दें, तो जो भी, लेकिन जो तुम मांगोगे
तो हम तुम्हें जो है देने के लिए तैयार हैं, और बल्कि क्या, हम ज़ूस से दुआ करेंगे कि ये जंग हमें जिता दे, तो जो ट्रॉय में जितना भी हमें ख़जाना मिलेगा हम तुम्हें ही दे देंगे। लेकिन mighty Agamemnon then said in reply, Achilles, you're a fine man like a god, but don't conceal what's hidden in your heart. You will not deceive me or win me with your words. You intend to keep your prize for yourself. You know, we'll find, I mean, वर्ड से पता चल रहा है Agamemnon is very very selfish. वो अकाइलिस को कह रहा है कि तुम मुझे तो कह रहे हो कि मैं अपने जंग में लूटी हुई जो मेरा इनाम था, जो मेरी बांदी है, मैं वो वापस कर दूँ, जबकि तुम अपनी बांदी तुम अपने पास रखो। योर वॉर प्राइज इज़ विद यू, बट आई हैव टू रिटर्न माई वॉर प्राइज। व्हाट आई वांट इज़ कि मुझे जो है, जो तुम्हारा वॉर प्राइज़ है, जो बांदी तुम्हारी है जिसका नाम है ब्राइसिस, आगे उसका नाम आएगा भी सही, ठीक है, वो मुझे तुम दे दो, और जो है मैं अपना जो वॉर प्राइज़ है वापस कर देता हूँ। ये लाइन्स अगर मैं जूम कर रही हूँ यहाँ पे, आप देखिए व्हाट ही सेज, लेट एकियंस गिव मी अनदर प्राइज इक्वल इन वैल्यू, समथिंग आई विल एंजॉय, इफ नॉट देन आई विल टेक अ प्राइज माई सेल्फ बाई फोर्स। कि या तो तुम लोग मुझे खुद अपनी मर्ज़ी से मुझे अपना प्राइज़ दे दो, या फिर मैं ज़बरदस्ती तुम लोगों से ले लूँगा। समथिंग फ्रॉम यू और अजैक्स और ओडिसस, द मैन आई विजिट इज़ गोइंग टू बी इन रेज, लेट्स पोस्टपोन डिस्कशन ऑफ ऑल थिंग्स, लेट्स ड्रैग अ ब्लैक शिप टू द सेक्रेड सी, सेलेक्ट क्रू, लोड एन ऑक्सन ऑन। तो कहता है कि अच्छा ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए एक कश्ती निकालते हैं, उस पर क्राइसिस और जितने भी कुर्बानी के जानवर हैं जो उन्हें अपोलो के लिए करने हैं कुर्बानी, वो भेजते हैं, ताकि जो है हम लोग जो है इस चीज़ से, तो इस अजाब से, इस कहर से तो बाहर निकलें। तो यहाँ पे जो है काइलिस का रिस्पांस आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जूम करूँगी और आप लोग वो रीड कीजिए मेरे साथ ही। स्काउलिंग ग्रिमली, स्विफ्ट फुटेड अकाइलिस इंटरपोज, यू इनसेशिएबल क्रिएचर क्वाइट शेमलेस, हाउ कैन एनी एकिन ओबे यू विलिंगली। तो वो देखता है कि यार ये बंदा कितना सेल्फिश है, कितना एग्रेसिव है, कितना फुल ऑफ हिमसेल्फ है। तो वो अकाइलिस जो है एकदम को कहता है दैट यू आर इनसेशिएबल क्रिएचर, कि तुम्हारी जो हवस है ना वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, यू क्वाइट शेमलेस, और तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, बट यू आर अ वेरी शेमलेस मैन। It says join a raiding party or keep fighting with full force against an enemy. I did not come to battle over here because of Trojans. तो यहाँ पे ये जो है ये सारी लाइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि Achilles is telling him that why he is in this war. असल में हमको पता है कि ये वॉर किस लिए लड़ी जा रही है, हेलेन के लिए। हेलेन मेनोलस की बीवी है और एगेमेम्नॉन की भाभी लगती है, सिस्टर इन लॉ है। ही सेज कि इट इज़ योर मैटर, इट इज़ योर ऑनर, तुम्हारी इज्जत और वकार के लिए हम सब लोग आए हैं। ट्रोजन्स ने ना तो हमारी फसलें बर्बाद की हैं, ना हमारे जानवर मारे हैं, ना हमारे मुल्क को कब्जा किए, ना हमारा कोई लोगों को उनने जो है अगवा करके गए हैं। हम यहाँ पे तुम्हारे लिए आए हैं, अपनी यूनिटी शो करने के लिए। वी हैव कम हेयर टू सपोर्ट यू। और तुम इतने शेमलेस इंसान हो कि तुम हमें इस तरह की बातें सुना रहे हो, बजाय हमारा एहसानमंद होने के, शुक्रगुजार होने के, इस मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सो ये सेज जॉइन अ रेडिंग पार्टी और कीप फाइटिंग विद फुल फोर्स अगेंस्ट एन एनिमी। I did not come to battle over here because of Trojans. I have no fight with them. कि मेरी ट्रोजन के साथ कोई जंग नहीं है। They never stole my bulls or horses or destroyed my crops in fertile Pythia. Achilles Pythia का किंग है, ठीक है। Where heroes grow, many shady mountains and the roaring sea stand there between us. But you great shameless man, we came with you. हम तुम्हारे लिए आए हैं। टू प्लीज़ यू, टू विन ऑनर फ्रॉम द ट्रोजन, तुम्हारी इज्जत के लिए आए हैं। फॉर यू डॉग फेस एंड फॉर मेनिलस। अब अकाइलिस क्योंकि वो भी ज़ाहिर बात है किसी से डरता नहीं है, तो हिज कॉलिंग, अकाइलिस का भी गुस्सा जो है काफ़ी तेज़ है, ठीक है। तो हम नोट जो है अकाइलिस के कैरेक्टर पे भी आ सकता है। सो ही इज़ कॉलिंग हिम डॉग फेस एंड फॉर मेनिलस, हम तुम्हारे लिए और मेनोलस के लिए आए हैं। यू डोंट कंसिडर दिस, डोंट थिंक ऑफ ऑल। यू थ्रेटन नाउ टू कन्फिस्टिकेट द प्राइज आई वर्क सो हार्ड, गिफ्ट फ्रॉम एकिया's सन, when we Achaeans loot some well-built Trojan town, my prize never matched the ones you get. The major share of war's fury rests on me, but when we hand around the battle spoils, you get much larger trophies. Worn out in war, I reach my ship with something fine but small. So I'll return home now to Pythia. It's far better to sail back in my curved ships. I don't fancy staying here unvalued to pile up riches. Troy here is just for you.
इकाइलिस बहुत गुस्से में है क्योंकि जो है एगमेम्नॉन ने पहले तो उनकी इंसल्ट की है कि तुम लोग बेकार लोग हो, फिर ये भी कहा है कि मैं तुम लोगों का जो इनाम है बांदियाँ हैं वो ले लूँगा, ठीक है, और ये भी कहा है कि तुम लोग या तो मुझे ये वादा दो कि हम जब ट्रॉय को जीत लेंगे तो जो भी ख़जाने होंगे, मालो दौलत होगा, तुम लोग मुझे दे दोगे। तो इकाइलिस को बहुत गुस्सा आया कि एक तो पहले हम तुम्हारी इज़्ज़त और अनाक वकार के लिए आए हैं, एंड देन यू आर सेइंग कि हम ये सारी कत्लो गारत मार लूट किस लिए करें, तुम्हारे लिए, तुम्हारी अमारत में बढ़ावे के लिए, तुम्हारे दौलत के अंबार में ज़्यादा इजाफा करने के लिए। तो मैं तो अपने ना लोगों को मरवाना चाहूँगा, ना अपने शिप सभा को मरवाना चाहता, मैं अभी के अभी ये जंग छोड़ के जाता हूँ। सो नाउ वी आर लुकिंग एट द इनर कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ वेरी बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ग्रीक आर्मी का वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है बिटवीन द एगमेम्नॉन एंड इकाइलिस, ठीक है। और उसके बाद जो है जब एगमेम्नॉन उसके ये वर्ड सुनता है तो वो भी जवाब देता है, टू दैट एगमेम्नॉन किंग ऑफ मैन शॉट बैक, ये लाइन्स भी इंपॉर्टेंट है, फ्लाई ऑफ होम दैन इफ़ दैट्स योर हार्ट्स डिज़ायर, आई नॉट बेग यू टू स्टे ऑन माई अकाउंट, आई हैव अदर अराउंड टू ऑनर मी। वो कहता है कि मैं जो है, तो मैं तुम्हारी भीख नहीं मांगूंगा, तो नहीं तुम रुक जाओ, मेरे साथ जंग लड़ो, तुमने जाना है तुम जाओ। तो जो उसके साथ वो ये भी कहता है लेकिन तुम जा तो रहे, लेकिन तुम्हारा जो वॉर प्राइज़ है वो तो मैं अपने पास रखूँगा, ये नाम है, बट आई विल मेक दिस थ्रेट, आई विल टेक योर प्राइस। 200 लाइन पे, फेयर चीक्ड ब्राइसेस आई विल फैच हर इन पर्सन, यू विल सी जस्ट हाउ मच आई एम द बेटर मैन, एंड अदर्स विल हेट टू स्पीक टू मी एज पेयर्स इन पब्लिक क्लेमिंग फुल इक्वालिटी टू मी। तो कहता है कि तुमने जाना तो जाओ, लेकिन तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, मैं जो हूँ, जो तुम्हारा वॉर प्राइज़ है वो हर हाल में, जो ब्राइसेस लड़की है मैं उसको लेके रहूँगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे और कोई मेरे बराबर नहीं आ सकता है, मैं सबसे सुपीरियर हूँ। तो ही स्पीकिंग आउट ऑफ सेल्फिशनेस एंड ग्रीड एंड हिज सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी कि मैं सबसे बेहतर हूँ। सो एज एगमेम्नॉन स्पोक, पेलियस सन इकाइलिस वॉज ओवर, इकाइलिस जो है उस वक्त बहुत गुस्से में है, इज़ वेरी एंग्री, और उसका दिल चाह रहा है कि वो तलवार निकाल के यहीं पे एगमेम्नॉन का खात्मा करते। बट हेयर कम्स एथीना, एक और गॉडेस आ गई। आपको पता है अगेन कि गॉड्स हैं वो रुक नहीं सकते हैं भी इनके मामलों में जो है टांग अड़ाने से। सो अथीना जो है शी इज़ गॉडेस ऑफ वॉर स्ट्रेटेजाइजेशन, गॉडेस ऑफ वॉर, वो आ गई है और वो इकाइलिस को जो समझाती है, हीरा के कहने पे वो आती है। हीरा का जो है फेवरेट है इकाइलिस, हीरा वाइफ ऑफ जूस, ठीक है। तो अथीना आई है और वो उसको समझाती है कि तुम काम डाउन, यू हैव टू काम डाउन, दिस इज़ नॉट द वे, यू डोंट हैव टू किल एगमेम्नॉन, इस तरह से तुम्हारे लोग खिलाफ हो जाएंगे। उसको वो ठंडे दिल से दिमाग से समझाती है, ठीक है। सो अथीना जो है यहाँ पे सिचुएशन डिस्पर्स करने आई है, जो इतनी टेंस सिचुएशन हो गई है जहाँ पे वो खून खराबा होने वाला है, शी डिस्पर्सेस द सिचुएशन एंड शी काम्स हिम डाउन, ठीक है। एंड देन तो जब वो इकाइलिस देखता है कि एथीना आई है तो उसे कहता है कि चाइल्ड ऑफ एगिस बेरिंग जूस, व्हाई हैव यू कम हियर, डू यू विश टू सी हाउ ओवर, कि तुम यहाँ देखने हैं कि एगमेम्नॉन हमारे साथ कितना जुल्म ज़्यादती कर रहा है, कितना बदतमीज़ है, ये सब कुछ। लेकिन एथीना जो है ये अगली लाइंस में उसको जो है समझाती है, स्पेशली ये लाइंस जो मैं जूम भी करूँगी। स्विफ्ट फुटेड इकाइलिस आंसर्ड एथीना, गॉडेस व्हेन मेन शुड फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस थ्रू एंग्री, though angry in their heart, it's better so the person who's obedient to the gods, so God attend to all he says कि मैं तुम्हारी वजह से जो है मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, लेकिन जो है क्योंकि तुम गॉड, यू आर गॉडेस, अदरवाइज एगमेम्नॉन ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ मैं जो है बात करूं। और ये फिर वो एगमेम्नॉन से बात करता है। इकाइलिस टर्न्ड अगेन ऑन एगमेम्नॉन, एट टू हिज सन विद हार्श अब्यूज, हिज एंगर स्टिल अनअबेटेड। इकाइलिस मारने का जो प्लान है वो तो छोड़ चुका है लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ है। एंड ही अब इकाइलिस बोल रहा है एंड स्पीकिंग वेरी बैड वर्ड्स टू एगमेम्नॉन, यू ड्रंकन सॉट, डॉग आइड, डियर टिमिड कावर्ड, बुज़दिल, कुत्ते की आंखों वाले, ड्रंकन, शराबी कबाबी, इस तरह के वर्ड्स उसके लिए यूज़ करता है। यू आर नेवर स्ट्रॉन्ग इनफ विद इन योर सेल्फ टू आर्म फॉर वॉर अलॉन्ग साइड, सेज कि तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम खुद अकेले इस जंग पे आ नहीं सके, तो तुम हम सब के पास आओ, मुझे बचा लो, हमारा इज़्ज़त बचा लो, हमारा इज़्ज़त बचा लो, ठीक है। तो तुम इतने जो है लूज़र हो और अब तुम कहते हो कि हाँ तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई काफ़ी हीटेड हो रहा है जो है
आर्ग्यूमेंट जो है। उसके बाद एक वहाँ पे एक और ग्रीक लीडर है नेस्टोर, जो काफ़ी बूढ़ा है और उसके पास ईयर्स मतलब बहुत साल हैं एक्सपीरियंसेस के वॉर्स के। तो वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों लड़ रहे हो तो जो ट्रोजन है वो खुश होंगे कि इनके आपस के दरमियान लड़ाई हो गई है और ये एक दूसरे को खुद ही मार मार खा के निकल जाएंगे, हम पे तो कोई हमला ही नहीं करेगा तो हम तो बिल्कुल बच जाएंगे। तो तुम लोग समझो, तुम लोग जो है रिलैक्स रहो। और ये सारी बातें उन्हें समझाता है। वो कहता है कि मैंने बहुत वॉर्स में हिस्सा लिया हुआ है और मुझे पता है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन तुम लोग सब हौसले से काम लो। तो फिर एगेमेम्नॉन जो है नेस्टर को वो भी बहुत जो है बदतमीज़ी से जवाब देता है। ही सेज ओल्ड मैन एवरीथिंग यू से इज़ ट्रू अनफ, बट दिस मैन वांट्स टू पुट द रेस्ट टू शेम, रूल ऑल ऑफ अस, लॉर्ड इज़ ओवर एवरीवन, बट सम आई थिंक विल नॉट ओबे हिम। तो वो कहता है कि ये चाहता है काइलीज, एगेमेम्नॉन से काइलीज को लगता है कि ये सबसे बड़ा है और ये चाहता है हम सब इसकी माने, तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा। तो ये लाइंस जो हैं इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी सी रीड में सारी रीड कर देती हूँ। ओल्ड मैन एवरीथिंग यू से इज़ ट्रू इनफ, बट दिस मैन वांट्स टू पुट द रेस्ट टू शेम, रूल ऑल ऑफ अस, लॉर्ड इट ओवर एवरीवन, बट सम आई थिंक विल नॉट ओबे हिम, सो व्हाट इफ द गॉड्स हु लिव फॉरएवर मेड हिम अ स्पेयर मैन, इज़ दैट सम रीज़न वी शुड लेट हिम से सच शेमफुल थिंग। तो एगेमेम्नॉन कहता है कि क्योंकि अकाइलिस एक अच्छा जो है जंगजू है, क्योंकि गॉड्स ने उसको ये पावर दी है, तो हम सब उसकी बात मानने शुरू हो जाए। और जैसे ही अकाइलिस ये बात सुनता है दैट एगेमेम्नॉन कह रहा है कि मैं सिर्फ अच्छा जंगजू इसलिए हूँ, अच्छा वॉरियर इसलिए हूँ बिकॉज गॉड्स ने मुझे ये ताकत दी है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है इस पर अगली तमाम लाइन में। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं जो हूँ यहाँ से जा रहा हूँ, और उसके बाद वो करता भी यही है। वो जो है वहाँ से जो है निकल जाता है, वो एक साइड पे चला जाता है। और एगेमेम्नॉन इतना ही बदतमीज़ और बेतीत है, वो लोगों को अपने सोल्जर्स को भेजता है कि जो उसका वॉर प्राइस था ब्राइसिस वो उसको ले आए, ठीक है। और जो है इकाइलिस जो है वो चला जाता है एक साइड पे, वो दरिया के किनारे जाके बैठा है। और इकाइलिस जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है। जबकि उसका वॉर प्राइस जो है वो जा चुका है। इन लाइंस पे आइए जो एंड की लाइंस हैं, ठीक है। इकाइलिस देन इन टीयर्स विथड्रॉ फ्रॉम हिज कंपेनियन सैट बाय द शोर, वो सबसे अलग थलग होकर समंदर किनारे बैठ जाता है। और वो जो है और दुआ मांगता है, एक्चुअली दुआ नहीं बद दुआ करता है। ही क्राइज लाउड प्रेइंग रिपीटेड थेटिस हिज बिलवड मदर। थेटिस जो है वो शी इज़ मदर ऑफ इकाइलिस, शी इज़ अ गॉडेस। तो वो उसको जो है इकाइलिस उससे दुआ करता है। आपको पता है कि गॉड्स जो हैं वो मॉर्टल ह्यूमन बीइंग के साथ मेट करते थे, तो उनके मॉर्टल सन्स भी होते थे। तो इकाइलिस जो है थेटिस गॉडेस का एक मॉर्टल सन है। तो वो अपनी मदर से जो है रिक्वेस्ट करता है, ही सेज मदर सिंस यू गेव मी लाइफ इफ़ ओनली फॉर अ वाइल ओलंपियन सूस हाई थंडर शुड गिव मी ड्यू ऑनर। ही सेज के जो है क्योंकि मैं एक गॉडेस का बेटा हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो तुम्हें मुझे ये जो है ना मेरी बात सुननी होगी और जूस से मेरी बात मनवानी होगी, ताकि तुम्हें कुछ भी करना पड़े। और वो क्या कहता है, क्या बात कहने को कहता है, he says if only for a while Olympian Zeus high thunder should give me due honor, but he does not grant me even slight respect, for while ruling Agamemnon Atreus' son has shamed me, has taken away my prize, appropriated it for his own use। says कि Agamemnon जो है उसने मेरे इंसल्ट की है, ठीक है, उसने मेरा प्राइज़ ले लिया है अपने इस्तेमाल के लिए, और मुझे जो है आज मेरी इज़्ज़त वापस चाहिए। वो ऐसे कि तुम जो है जूस से मेरे लिए दुआ करोगी कि वो एगेमेम्नॉन को तबाह कर दे, वो ये जंग भी हार जाए और एगेमेम्नॉन की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाए, तब जो है मैं यहाँ से इस जंग से चला भी जाऊँ, तो तुमने ये जो है मेरे लिए ये बात पूरी करवानी है। वो रोते रोते उससे ये बात कर रहा है। और उसकी मदर जो है उसको जो है शी रोज़ अप मूविंग अबव ग्रे वाटर्स एंड शी सेज माई चाइल्ड वाई दीज टेयर्स व्हाट सॉरो वे। उससे वो पूछती है कि तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो और ये सब कुछ। और वो जो है आगे सारी बात उससे अपनी मदर को बताता है कि ये सब कुछ हुआ है। इन तमाम लाइन से वो सारी कहानी दोहराता है कि ऐसे प्रीस्ट आया था, उसकी बेटी थी, वॉर प्राइज़ रिटर्न नहीं किया, ऐसे अपोलो ने अपना जो है सारा हम पे अजाब डाला और फिर हमारे दरमियान क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, सब कुछ बताता है, ठीक है। तो थेटिस जो है शेडिंग टेयर्स आंसर्ड हर सन इकाइलिस ओ माय चाइल्ड व्हाई डिड आई नर्चर यू सिंस आई ब्रॉट यू अप टू सो मच, के मेरे वो से कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तुम्हारे लिए मैं जो चाहे करूँगी।
your life is fated to be short. You will not live long now. Faced with a quick doom, you are in distress more than so any other man. At home, I gave you life marked by an evil fate, but I'll tell these things to thunder loving Zeus. I'll go myself to snow top. She says कि मैं जो है ओलंपस जाऊंगी और मैं जूस से ये बात मनवा के आऊँगी कि जो तुम्हारी बद्दुआ है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है कि एगमेम्नॉन के साथ बहुत बुरा वो हो उसके साथ. Meanwhile you should sit by swift ships angry at Achaeans take no. लेकिन उनसे कहती है कि तुम जो है ना यहाँ छोड़ के ना जाओ, तुम यहीं बैठे रहो, सिर्फ देखते रहो, बेशक तुम पार्टिसिपेट ना करो वॉर में, लेकिन वापस नहीं जाना और तुम यहीं पे रहना. तो और मैं उसको जो है मना के ही आऊँगी. Thetis spoke, then she went away leaving Achilles there angry at heart for lovely girdled prizes taken from him by force against his will. Odysseus sailed to Chryse, और Odysseus जो है वो वापस जाके जो अपोलो की प्रीस की बेटी है वो रिटर्न करके आता है, और उसके बाद जो है उनके ऊपर जो है वो आसमान से बरसते हुए जो तीरों की जो बारिश है वो रुक जाती है. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन. उसके बाद जो है थेटिस जो है ऑब्वियसली जो है वो जाती है जूस के पास और उसे कन्विंस करती है. ये सारी लाइंस जो हैं, जो लास्ट की लाइंस हैं, लाइन नंबर 500 से 600 तक, इनके पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो हीरा, अपोलो और थेटिस, इनका क्या रोल है एज गॉड्स. So far we have come to know that how gods had interfered in the lives of these Greek warriors, and we have come to know the inner conflict between the Greek warriors. कि इंसान के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आपकी खसूसियात होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, वो कैसे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम कर सकती है. एगमेम्नॉन का गुस्सा, रेज, एकाइलिस का गुस्सा और रेज. और एकाइलिस जो है इतने गुस्से में है कि वो जाके जिन लोगों के साथ सपोर्ट करने के लिए आया, अब उन लोगों के लिए बद्दुआ कर रहा है कि ये लोग जंग हार जाए. तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स आर. एंड देन गॉड्स, दे आर नॉट लेस देन ह्यूमन बींग्स. वो भी उनके साथ उनके मामलात में ऐसे ही टांग अड़ा रहे हैं. दे मेडलिंग विद देयर अफेयर्स like they have nothing else to do. Now the important questions which can come out of this book, this Iliad, is character of Agamemnon, anger of Achilles, is it justified or not, and then the role of गॉड्स का जो रोल है वो क्या, किस लेवल का है. क्या सिर्फ वो अलूफ ऑब्जर्वर हैं, वो चुपचाप तमाशाई बने हुए सब कुछ होता देख रहे हैं. आर दे अलूफ ऑब्जर्वर्स, आर देर इंटरमीडिएरीज, क्या वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो बिला वजह किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर दे आर बायस्ड, वो लोगों का साथ दे रहे हैं. जैसे थेटिस जो है वो जाके जूस से दुआ मनवाएगी कि जी तुमने जो है एगमेम्नॉन की फ़ौज के ऊपर कहर ढाना ही ढाना है, उनको हराना ही हराना है. तो ये सारा कुछ जो है, क्या गॉड्स जो हैं वो अलूफ ऑब्जर्वर हैं, इंटरमीडिएरीज हैं, या वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस पूरे वॉर में. सो ये 3 क्वेश्चंस हैं विच यू हैव टू प्रिपेयर. एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम सो फार इन द इलियड, यू गाइज कैन राइट इट इन द कॉमेंट. एंड आप लोगों के सेशनल मार्क्स मैंने अलॉट कर रहे हैं. सो आई वांट कि आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, आप लोग कमेंट्स में give me a summary, and through that summary I'll come to know that you have understood the lecture, and then I'll allot some session marks for you. Have a very good day everyone.